Welcome to Proving CS, where we give wings to your professional dreams. This is Professor C.A. Hitesh Sharma, taking current affairs subject at CS EET level. In this video, we'll be analyzing May 2021 paper, which was conducted by ICSI on 8th May 2021. In this video, we'll be discussing some 15 questions of current affairs. So let's start. First question. Identify the name of world's first Scientune book written by Scientunist Dr. Pradeep Srivastava, released in October 2020. That book is named Bye Bye Corona. ये बुक में प्रदीप श्रीवास्तव जी ने ये लिखा है कि कोविड-19 जो एक पैंडमिक डिजीज़ है, इसे कैसे टैकल किया जाना चाहिए. बाय बाय कोरोना बुक का नाम है. The book makes people aware of COVID-19 in an engaging way. It is further planned to make a 3D version of this book to facilitate its multilingual adaptation across India and abroad. Post its launch in India, इंडिया में लॉन्च होने के बाद, the book would soon be released in Brazil under Brazil India Network program and would possibly translated into Portuguese language, Dr. प्रदीप श्रीवास्तव author said. तो बाय बाय कोरोना ये प्रदीप श्रीवास्तव जी ने बुक लिखी थी ऑन हाउ टू डील विथ कोविड इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following is the current CEO of Serum Institute of India, which is a manufacturer of immunobiological drugs including vaccines? ये सबसे इजी क्वेश्चन था ये पेपर का. ये CEO को जानते भी होंगे. आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं. इन्होंने जो वैक्सीन निकाली है वो वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड. Question 3. Which company has been adjudged Best Governed Company at the 20th ICSI National Awards for Excellence in Corporate Governance 2020 in the listed segment large category? ITC Limited. ITC का फुल फॉर्म है इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड. अब इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी जिनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है. दे आर इनटू वेरियस सेक्टर्स ऑफ बिजनेसेस. ITC has diversified presence in branded packaged foods, personal care, education and stationery, agarbattis and safety matches, lifestyle retailing, cigarettes and cigars, hotels, paperboards and specialty papers, packaging, agribusiness and IT. अब ये अवार्ड क्यों दिया गया था ITC लिमिटेड को? बिकॉज ITC लिमिटेड ने द अवार्ड रिकॉग्नाइजेज इट्स कंसिस्टेंट ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रीब्यूटिव कैपेबिलिटीज, गवर्नेंस एथोस एंड सेंसिटाइज्ड अप्रोच टुवर्ड्स CSR एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द कंपनी सेड इन अ रिलीज. अब ये कंपनी ने एक प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरह अपने आप को ऑपरेट किया है, जिसके वजह से इनको ये अवार्ड मिला था. फोर्थ क्वेश्चन. In December 2020, India Post Payment Banks unveiled a digital payment app as part of its ongoing efforts to provide digital financial inclusions at the last mile across India. Identify the name of its app. PostPay, Duck Seva, DuckPay, PaySeva. The answer is DuckPay. अब ये जो DuckPay है ये ऐप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स ने लॉन्च किया था. दिस इज़ बेसिकली नॉट एन ऐप. इसमें खाली आप पेमेंट्स कर सकते हो ऐसा नहीं है. दिस ऑपरेट्स लाइक अ बैंक अकाउंट. आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, आपको ऑनलाइन में कुछ पेमेंट करना है, बिल्स का कुछ रिचार्ज करना है, तो वो सब ये ऐप से हो सकता है, जिसके बारे में नीचे लिखा हुआ है. द ऐप इज़ पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑनगोइंग एफर्ट्स टू प्रोवाइड एक्सपांड digital financial inclusion to all corners of the country. According to a Ministry of Communication press release, DuckPay is not a simply digital payment app but is a collection of digital financial and assisted banking services bundled together for its users. These services are provided by India Post Bank Payment and IPPB through its postal network spread across the nation. Fifth question. In December 2020, easiest question, Government of India approved a framework for the proliferation of broadband networks through PM Wani schemes. What does PM Wani stands for? PM Wani का full form क्या है? Prime Minister Wide Area Network Interface? No. Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface. अब ये इंटरफेस लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. अब इसका यूजेस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है लॉन्च करने का? PM वानी स्कीम एम्स टू इंक्रीज द ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया एंड फर्दर पुश इंटरनेट अडॉप्टेशन इन रूरल एरियाज.
Under the scheme, public Wi-Fi networks to be enabled by public data office aggregators to provide Wi-Fi service through public data offices. No license fee for providing broadband internet through this public Wi-Fi networks will help in proliferation of broadband internet, enhance income and employment for small and medium entrepreneurs, and ease of doing businesses. Next question. Sixth question. ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता था. IPO is the process by which a private company can go public by sale of its stocks to general public. IPO stands for Initial Public Offering. अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ का फुल फॉर्म है. अगर प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बनना है तो उनको आईपीओ से अपने शेयर्स या स्टॉक्स अपनी जनरल पब्लिक में लॉन्च करने पड़ते थे, जनरल पब्लिक को ऑफर करने पड़ते थे. फिर जनरल पब्लिक जब शेयर्स खरीद लेगी कंपनी के तो जनरल पब्लिक बिकम्स द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. An initial public offering refers to the process of offering shares of a private corporation to the public in a new stock issuance. Public share issuance allows a company to raise capital from public investors. India's biggest floating solar power plant with a capacity of 100 megawatts is being set up at which of the following places in India? Floating solar plant बहुत ही important question था. रामागुंडम तेलंगाना, वहां पर ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट सेटअप किया जा रहा है जिसकी इमेज मैंने आपके साथ शेयर की है. अब ये सेटिंग अप फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का बेसिकली ऑब्जेक्टिव है कि जो कार्बन फुटप्रिंट्स है उसको रिड्यूस करना है. सेटिंग अप फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इज एम्ड एट रिड्यूसिंग इट्स कार्बन फुटप्रिंट्स एंड एक्सीलरेट इट्स ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन टू 30% ऑफ इट्स कैपेसिटी. 8th question. Which of the following countries is holding the chairmanship of ASEAN for 2021? Brunei. 9th question. Easiest question. In March 2021, ये तो काफ़ी स्टूडेंट्स को आता होगा. India gifted 109 life support ambulances and 12 million doses of the Covishield vaccine. Covishield vaccine was launched by सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिनके सीईओ कौन थे जो अपन ने सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस किया, आधार पूनावाला. टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन सी कंट्री को इंडिया ने ये गिफ्ट किया था? द आंसर इज बांग्लादेश. ड्यूरिंग हिज 2-day visit to Dhaka, PM Narendra Modi on March 27 gifted 1.2 million doses of coronavirus vaccines to Bangladesh. PM Modi, who is visiting the neighboring country on his first trip to a foreign nation since the outbreak of coronavirus, handed over a representational box to his Bangladeshi counterpart, Sheikh Hasina, who is PM of Bangladesh, as a symbol of India's gift of vaccine doses to Bangladesh. He also handed over a representational key of 109 ambulances to Hasina. PM Modi gifted a Pashmina shawl and an old video of Sheikh Mujibur Rahman from Indian archives to Sheikh Hasina as well. तो इंडिया ने ये जो गिफ्ट है विथ रिस्पेक्ट टू हाउ टू टैकल और वैक्सीन्स और एम्बुलेंसेस के रिलेटेड, कोविड-19 के रिलेटेड, कि एक कंट्री ओवरकम कर पाए जल्दी से जल्दी, तो इंडिया ने बांग्लादेश को ये गिफ्ट किया था. 10th question. ये क्वेश्चन का आंसर आई कैन से more than 99% स्टूडेंट्स का करेक्ट था. इन Jan 2021 लैंडमार्क डेट रहेगा बेटा, एज वी आर लिविंग इन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम्स. अभी आप यहाँ से कुछ 50-60 साल आगे भी देखेंगे तो ये डेट, ये मंथ हमेशा याद रहेगा जब इंडिया ने Jan 2021 में विथ टू टैकल कोविड-19 डिजीज उसके अगेंस्ट 2 वैक्सीन लॉन्च की थी. इन Jan 2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड 2 कोरोना वायरस वैक्सीन्स फॉर रिस्ट्रिक्टिव इमरजेंसी यूज. आइडेंटिफाइड दिस 2 वैक्सीन्स करंटली बीइंग एडमिनिस्टर्ड फॉर ऑल द पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज इन इंडिया. एक है कोविशील्ड, दूसरा है कोवैक्सीन. कोविशील्ड किसने लाया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने. कोवैक्सीन किसने लाया है? भारत बायोटेक ने. तो उसकी मैंने इमेज आपके साथ शेयर की है. इमेज इसलिए शेयर की जाती है कि आप जब इमेज को देखते हो तो आपका जो रिमेम्बरेंस है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, क्योंकि अगर अपन इमेज देख के पढ़ते हैं तो वो इमेज अपनी मेमोरी में छप जाता है. तो जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड वॉज लॉन्च्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिनके सीईओ आधार पूनावाला, एंड कोवैक्सीन वॉज लॉन्च्ड बाय भारत बायोटेक. ये दोनों वैक्सीन आई थी Jan 2021 में.
11th question, read the following statements with reference to March 2021 ruling of Supreme Court and choosing the correct option. The Supreme Court of India has ordered waiver of compound interest on all loans put under moratorium due to COVID-19 pandemic last year. The Supreme Court has turned down the pleas from various trade associations and corporate bodies seeking an extension of 6 months loan moratorium offered by RBI. गाइस, जब फर्स्ट वेव आया था इंडिया में कोविड-19 का, तो इट अफेक्टेड मैनी हाउस होल्ड्स, मैनी कॉर्पोरेट्स, मैनी ट्रेड एसोसिएशंस. तो आरबीआई ने लोन मॉरेटोरियम का ऑप्शन दिया था, 2 लोन मॉरेटोरियम का ऑप्शन दिया था 3-3 महीने के. अब जिन्होंने लोन मॉरेटोरियम लिया है तो उनका जो भी अमाउंट है ऑन लोन ईएमआई वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता था और उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा था. तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है उसको वे ऑफ करने बोला है और ट्रेड एसोसिएशंस ने बोला था हमको और मोरेटोरियम चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है बिकॉज वो डिसीजन आरबीआई लेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसी डिसीजन. तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है. तो आंसर इज पॉइंट 1 ऑल्सो ट्रू एंड पॉइंट 2 ऑल्सो ट्रू. एवरीवन. 12th question. Which among the following tennis players won the French Open men's singles final 2020? बेटा फ्रेंच ओपन इज अ ग्रैंड स्लैम. टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस में. पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और फिर होता है यूएस ओपन. तो फ्रेंच ओपन 2020 में किसने जीता था? ये आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आता रहेगा. राफेल नडाल. राफेल नडाल ने 2020 में जो फ्रेंच ओपन जीता है, ये टाइटल इन्होंने 13 टाइम्स जीता है. तो इनके पास 13 फ्रेंच ओपन्स है. और टोटल ग्रैंड स्लैम की बात करें तो राफेल नडाल के पास 20 ग्रैंड स्लैम्स है, उससे ही रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड इन्होंने इक्वल किया क्योंकि रॉजर फेडरर के पास भी 20 ग्रैंड स्लैम्स है. 13th question. The edition of the BRICS summit held virtually in November 2020 was hosted by which of the following countries? Russia. ब्रिक्स रशिया 2020 ब्रिक्स का जो समिट है वो रशिया ने किया था, वर्चुअली किया था बिकॉज कोविड का टाइम चल रहा है. अब इसमें यह समिट का बेसिक एजेंडा ये था कि हाउ कंट्रीज कैन हेल्प ईच अदर इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद कोविड-19 बिकॉज बहुत सारे बिजनेसेस अफेक्टेड है. तो बहुत सारी कंट्रीज ने अपने अपने सजेशंस दिए थे, अपने अपने एरियाज आइडेंटिफाई किए थे कि अपने को ये एरिया पे काम करना पड़ेगा. तो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं. ड्यूरिंग द 12th summit held in the backdrop of 75th anniversary of UN and in the midst of COVID-19 pandemic, leaders discussed intra-BRICS cooperation and key issues in the global context, including the reform of the multilateral system, measures to mitigate the impact of ongoing COVID-19 pandemic, cooperation in counterterrorism, trade, health, energy and people-to-people exchanges. 14th question. ये भी बहुत लोगों को पता है. India's Cyber Security Agency CERT has recently cautioned the users of which popular instant messaging app about certain irregularities detected in the app that could lead to breach of sensitive information. Answer is WhatsApp. 15th question. Which of the, ये तो सबको पता है. Which of the following organization came into existence by transferring the agricultural credit transactions of RBI? पहले एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट प्री 1982-1981, तो जो भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते थे वो आरबीआई ही मैनेज करती थी. फिर 12 जुलाई 1982 को आरबीआई ने एक सेटअप किया है इंस्टीट्यूशन का विच इज़ कॉल्ड एज नाबार्ड. तो नाबार्ड वॉज फॉर्म्ड ऑन 12 जुलाई 1982. अब एग्रीकल्चर के रिलेटेड उसके रिलेटेड जो भी डिसीजंस है, जो भी रूरल इकोनॉमी अर्बन इकोनॉमी में काम है वो नाबार्ड करेगा. तो गाइस, इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस सम 15 क्वेश्चंस ऑफ May 2021 पेपर. थैंक यू.